वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रिम एंड सिम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडिशनल इनपुट आउटपुट जो कॉन्सेप्ट है उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द एडिशनल इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसेस एंड इंटरफेसिंग द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें हमें जो भी इंटरफेसिंग इनपुट डिवाइसेस है that are to be interfaced or connected with the 8085 and how we can connect it. So we have to study the detailed design in this section. So first we start with this interfacing input devices. So in that we will take one example. In that we have to interface the 8 keys using the interrupt driven input output technique. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो interrupt driven input output technique है तो उसका यूज़ करके जो 8 कीज़ है उनको इंटरफेस करना है विद द 8085. सो दैट इज़ द एम. सो इन दैट फर्स्ट विल सी द एक्चुअल डिज़ाइन, मीन्स हाउ दिस कीज़ आर कनेक्टेड टू द माइक्रो प्रोसेसर by using the interrupt driven input output device. So this figure shows the interfacing of microprocessor with these 8 keys which are driven by using the interrupts. So in this figure the 8 keys, that is key 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, these keys are connected to the VCC power supply, that is plus 5 volt, and these are the keys so that the connection are made, that is open and close. So it is connected to the this NAND gate. NAND gate is connected to the RST 7.5 flip flop of 8085 and buffer is used. So this is used for temporary storage of data coming out from these keys, and it is given to the data bus of 8085 which is a 8-bit. So there is a D0 to D7 data bus are connected of microprocessor to the buffer. So here the IC74LS138 is used, which is a latch. In for that address A0 to A7 which is a lower bit address are given to it, and by using the IOM bar and RD bar signal, the signals are given to the output enable pin of the buffer. Then we'll see the detailed working of this design. So initially if all the keys are unpressed, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल 8 कीज़ है अगर वो अनप्रेस कंडीशन में, देन ऑल द इनपुट लाइन्स आर हाई. ठीक है, तो जितनी भी इनपुट लाइन्स है कीज़ की वो हाई होंगी एंड द आउटपुट ऑफ 8-bit NAND गेट इज़ लो. ठीक है, बिकॉज NAND गेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड. ठीक है, तो जो भी कीज़ अनप्रेस कंडीशन में होंगी ऑल कीज़, सो एट दैट टाइम इनपुट लाइन्स आर हाई फॉर दिस पिन्स एंड जो आउटपुट है NAND गेट का वो लो होगा बिकॉज ऑल द कीज़ आर कनेक्टेड टू द NAND गेट that is shown in the figure. So if any one key is pressed, so the status of that line becomes 0. ठीक है, तो अगर टोटल 8 कीज से अगर यूज़र कोई की प्रेस करता है तो उस कंडीशन में जो स्टेटस होगा इनपुट लाइन का वो 0 होगा एंड द आउटपुट ऑफ NAND गेट बिकम्स द हाई बिकॉज NAND गेट यूजेज द NAND एंड कॉम्बिनेशन गेट्स, सो इट विल यूज़ द अपोजिट आउटपुट. तो जैसे इनपुट लाइन 0 होगा, जो आउटपुट लाइन है NAND गेट का वो यहाँ पे हाई रहेगा, दैट इज़ 1, एंड इट गिव्स द इंटरप्ट सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर 8085. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो इंटरप्ट सिग्नल है 8085 को रिसीव होगा ड्यू टू दिस NAND गेट एज अ हाई. तो इनिशियल कंडीशन में ये जो टोटल 8 कीज़ है दे आर अनप्रेस, मीन्स दे आर ओपन. तो यहाँ पे जो इनपुट लाइन होगा वो यहाँ पे हाई होगा. ठीक है, एंड the NAND gate output will be a low because it is a combination of NOT and AND gate and all the keys are connected to this NAND gate. And in second case, if the any one key is pressed, so in that case the output of NAND gate becomes the high and it will give the interrupt to the 8085 microprocessor as a this RST 7.5 flip flop will be unable, means that gives the input 1 from NAND gate and this flip flop will be a
set to 1 and it will generate the interrupt. Therefore the microprocessor 8085 executes the interrupt service routine. ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया कि ISR का यूज़ किया जाता है इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए. ठीक है, so to identify if the key is pressed, so whenever the key is pressed and the interrupt is generated and it is given to 8085, then it is executed by the interrupt service routine, that is ISR. so whenever the key is pressed and interrupt is automatically generated. तो जैसे ही यूज़र इन टोटल 8 कीज से जो भी की प्रेस करेगा तो यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट होगा एंड इट इनिशियलाइज द इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र. ठीक है, एंड इससे जो इनपुट डेटा है थ्रू कीज is transferred to the 8085 microprocessor and this method is called as a simply interrupt driven input output. ठीक है, तो यूज़र जैसे ही यहाँ पे की प्रेस करेगा, की प्रेस करने के बाद उस रिस्पेक्टिव की का जो इंटरप्ट है वो यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर में रिसीव होगा एंड बाय यूजिंग दिस ISR दैट इंटरप्ट विल बी अ सर्विस. सो देयरफॉर दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ simply interrupt driven input output method, and the buffer is enabled only when IR signal and the output Y0 of the decoder are low. तो जो बफर हमने यहाँ पे यूज़ किया है IC 74LS138 इज़ द बफर IC. ठीक है, तो यहाँ पे बफर जब IO रीड सिग्नल एंड आउटपुट Y0 जो है डिकोडर का वो लो होगा, सो एट दैट टाइम बफर इज़ अनेबल एंड द इनपुट पोर्ट एड्रेस इज़ गिवन हियर. So here D0 to D7 are the 8-bit data. So if the D7 bit is 1, so and other remaining keys data will be a 000 like that. So it is a ATH. So that will be the actual value, because 1000 means it is a 8 in the decimal and also in the hexadecimal number system. Then we'll see the interrupt service routine program. So here the instruction IN ATH, that is interrupt ATH, that will read the status of all the flags. ठीक है, तो जितने भी flags है उनका status यहाँ पे read किया जाएगा. Then 00H is move into the this C register by using the MVI instruction. So that will initialize the counter to the 00. तो C register का हम यहाँ पे as a counter use करेंगे and उसको हमने initialize किया है 0 condition पे. Then we use the loop, that is back is label used for that. RRC move the LSB into carry. Then by using the jump L1, if the carry is 0, key is pressed and key number is in C register. ठीक है, तो यहाँ पे अगर carry is equal to 0 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में की को प्रेस किया गया है एंड जो की नंबर है जैसे 1 to 8 है, ठीक है, तो वो की नंबर C रजिस्टर में यहाँ पे पास हो जाएगा. देन इंक्रीमेंट द C रजिस्टर, क्योंकि C रजिस्टर का हमने यहाँ पे एज ए काउंटर यूज़ किया है. सो इंक्रीमेंट की नंबर बाय 1. देन मूव A, C. ठीक है, तो C का जो की नंबर है वो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में मूव होगा. देन CPI चेक फॉर लास्ट की. देन आफ्टर दैट अगेन जंप बैक इफ़ नॉट रिपीटेड. ठीक है, तो ये लूप यहाँ पे कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, एंड एट लास्ट द रिट्रेस टू द L1, that is return to the main program. So that is the interrupt service routine program which is act as one of the subroutine. तो ये एक subroutine है. ठीक है, so after completion of this interrupt service, the address of the main program is fetched by using this return instruction and the program counter control goes to the main program to fetch the next instruction. So that is the execution of interrupt service routine for this design. So in this way we study the interfacing of these input devices by using the example of these 8 keys using interrupt driven input output technique. Then we'll take the unit second A part, that is basic interfacing concept. इंटरफेसिंग द आउटपुट डिस्प्लेज, इंटरफेसिंग द इनपुट मेमोरी मैप IO. ओके, तो ये यूनिट सेकंड का जो पार्ट है इंटरफेसिंग कॉन्सेप्ट, इसका हम स्टडी करेंगे. तो इसमें हमें सबसे पहले जो 8155 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके जो पोर्ट मोड्स है उसका स्टडी करना है. ठीक है,
So in command word the function of ports are defined with the logic 1 as the output and logic 0 as the input. ठीक है, तो यहाँ पे जो 8155 के जो पोर्ट्स है उसमें लॉजिक 1 एज अ आउटपुट कंसिडर होगा एंड लॉजिक 0 मीन्स एज अ इनपुट. सो द फंक्शन ऑफ PA PB PC आर हैज़ द 4 कॉम्बिनेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है पोर्ट्स A, पोर्ट B एंड पोर्ट C का. ठीक है, सो इट हैज़ द 4 कॉम्बिनेशन. फर्स्ट इज़ द सिंपल इनपुट, सेकंड इज़ द सिंपल आउटपुट, थर्ड is the interrupt input and handshake signal and fourth one is the interrupt output with the handshake signal. ठीक है, तो इस तरह से जो 8155 उसमें जो पोर्ट्स है PA PB PC उसमें 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. अगर लॉजिक 1 रिसीव होता है सो दैट विल काउंट एज आउटपुट, लॉजिक 0 रिसीव होता है तो एज अ इनपुट. तो इसमें सिंपल इनपुट, सिंपल आउटपुट, इंटरप्ट इनपुट विद हैंडशेकिंग एंड इंटरप्ट आउटपुट विद द हैंडशेकिंग. सो द 8155 कैन बी प्रोग्राम इन वन ऑफ द अबोव कॉम्बिनेशन. तो ये जो चारों कॉम्बिनेशन है इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन पे हम प्रोग्राम कर सकते हैं 8155 माइक्रो प्रोसेसर का. सो द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज द सिंपल इनपुट आउटपुट मोड. सो वी कैन प्रोग्राम PA PB PC इन सिंपल इनपुट और आउटपुट इंडिविजुअली बाय द कमांड वर्ड फॉर्मेट एज फॉलोज. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोर्ट A, पोर्ट B एंड पोर्ट C है उसको हम सिंपल एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं. तो उसका जो कमांड वर्ड फॉर्मेट है वो यहाँ पे गिवन है. सो इनपुट पोर्ट मोड के लिए जो PA PB एंड PC पोर्ट है उसके लिए जो कमांड वर्ड बिट्स रहेंगे वो D0 इज इक्वल टू 0, D1 इज इक्वल टू 0 एंड D3 D2 इज इक्वल टू 0 0. ठीक है, तो जैसे हमने स्टडी किया के लिए इनपुट के लिए लॉजिक 0 रहेगा. ठीक है, एंड आउटपुट के लिए लॉजिक 1 होगा 8155 माइक्रो प्रोसेसर में. तो यहाँ पे जो कमांड वर्ड बिट्स है, ठीक है, D0 0, D1 0, D2 D3 आर 0 0 फॉर सेकंड एज अ आउटपुट मोड. सो PA PB PC कमांड वर्ड बिट्स आर D0 इज 1 इंस्टेड ऑफ 0, D1 इज 1, D2 एंड D3 आर 1 1. ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट के लिए यहाँ पे लॉजिक 1 कंसिडर करेंगे एंड इनपुट के लिए लॉजिक 0. सेकंड जो मोड है वो हैंडशेकिंग मोड है. सो 8155 कैन आल्सो बी यूज इन हैंडशेक मोड. ठीक है, तो हैंडशेक मोड में जो सिग्नल्स है उसका हम स्टडी करेंगे यहाँ पे. सो देयर आर 4 हैंडशेकिंग सिग्नल्स आर यूज इन दिस 8155 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग. सो द फर्स्ट हैंडशेकिंग सिग्नल इज द STB बार दैट इज कॉल्ड एज द सिंपली स्ट्रोब इनपुट, ST फॉर स्ट्रोब. सो इट इज़ एक्टिव लो इनपुट सिग्नल ऑफ 8155. बार है इसलिए यहाँ पे ये एक्टिव लो सिग्नल है. मीन्स वेन एवर द STB इज 0 देन इट विल एक्टिवेटेड. सो इट इज़ एक्टिवेटेड बाय द PRAPL फॉर डेटा ट्रांसफ़र. तो जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट इज़ PRAPLs कनेक्ट होंगे 8155 से. सो दिस स्ट्रोब इनपुट सिग्नल विल बी अनेबल बाय पुटिंग इट टू द 0. सो व्हेन PRAPL इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफ़र from or to 8155 it activates the STB bar and send or receives the data from 8155. तो जो भी डिवाइस इनपुट आउटपुट कनेक्ट होगा 8155 से, तो जब भी वो रेडी होगा डेटा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, तो वो एक्टिवेट होगा दिस STB बार पिन से एंड डेटा विल बी सेंड और रिसीव फ्रॉम 8155. क्योंकि इनपुट आउटपुट में मीन्स यहाँ पे इनपुट डेटा भी रिसीव हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर से एंड आउटपुट डेटा भी. ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट हैंडशेकिंग सिग्नल है दैट इज स्ट्रोब इनपुट. सेकंड हैंडशेकिंग सिग्नल इज द BF दैट इज कॉल्ड एज द बफर फुल. सो इट इज़ द एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल. तो यहाँ पे जो बफर फुल है ये एक्टिव हाई सिग्नल है. सो वेन एवर दिस बफर फुल इज 1 देन दिस पिन विल बी एक्टिवेटेड एंड दिस सिग्नल इज जनरेटेड बाय द 8155 टू इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इन पोर्ट. तो जो पोर्ट से PA PB PC इसमें जब भी डेटा अवेलेबल होगा तो उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे बफर फुल सिग्नल को एक्टिवेट किया जाएगा. सो द BF पिन फंक्शंस आर सेपरेट फॉर IO. ठीक है, तो यहाँ पे जो बफर फुल पिन के जो फंक्शंस है ये सेपरेट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए. So in that when the data is transferred from
माइक्रो प्रोसेसर 8155 टू द पीरियपियल, ठीक है। तो जब भी डेटा माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस पे ट्रांसफ़र होगा, सो एट दैट टाइम बफर फुल सिग्नल इज़ यूज टू सिग्नल द पीरियपल टू रीड इट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बफर फुल सिग्नल है वो सिग्नल सेंड करेगा, ठीक है, फॉर द पीरियपल टू रीड दैट डेटा, बिकॉज डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू द दिस पीरियपियल डिवाइस। सेकंड कंडीशन, व्हेन द डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम पीरियपियल टू 8155, ठीक है। तो जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर में, जो कि 8155 है। तो उस कंडीशन में जो बफर फुल सिग्नल है दैट इंडिकेट्स द डेटा इज स्टिल नॉट सेंड टू द 8085, सो डोंट टेक्स द नेक्स्ट डेटा बाइट, ठीक है। सो दैट इज़ द टू कंडीशंस फॉर डेटा ट्रांसफ़र फॉर दिस बफर फुल signal. Third type of handshaking signal is the INTR, that is called as the interrupt request signal. So it is the active high output signal. तो INTR जो एक high output signal है, ठीक है, means whenever this INTR pin is equal to 1 it is activated and it is used to interrupt the CPU of 8085, ठीक है। तो यहाँ पे ये interrupt जो है request accept करने का वर्क करेगा 8085 के लिए। So it is generated by the 8155 on the rising edge of STB bar if the interrupt enable bit is set in the command register. So that is the INTR, that is the interrupt request. Fourth handshaking signal is the I, that is interrupt enable. So it is an internal flip flop used to enable or disable the INTR. तो interrupt request signal को enable and disable करने के लिए यहाँ पे जो internal flip flop यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आई सिग्नल यूज़ होता है इंटरप्ट अनेबल। द इंटरप्ट अनेबल इज़ कंट्रोल बाय द कमांड रजिस्टर D4 एंड D5 बिट्स। तो कमांड रजिस्टर के जो D4 एंड D5 जो बिट फील्ड्स है दे आर यूज टू अनेबल द दिस इंटरप्ट अनेबल सिग्नल। इफ दिस बिट्स आर सेट INTR A and INTR B, so it will activate depending on the handshaking signal condition, and otherwise the interrupts are disabled. So these are the 4 handshaking signals for the interrupt mode. तो जैसे हमने स्टडी किया था कि 8155 जो है वो 4 कॉन्फ़िगरेशन मोड में वर्क करता है, ठीक है। तो जिसमें हैंडशेक इनपुट मोड एंड हैंडशेक आउटपुट मोड भी यूज़ होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द थर्ड एंड फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अभी लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरफेसिंग दिया है 8155 का एज ए इनपुट मोड विद द हैंडशेक सिग्नल विद द 8085. सो द जनरल इंटरफेसिंग स्कीमेटिक ऑफ 8155 पोर्ट A, that port A is used as a input mode, that is data will be accepted from the this input output PRPL, ठीक है। so that is the incoming data, so that is the input mode with the handshake signal that is shown in this figure, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैंडशेक सिग्नल है STB, बफर फुल एंड INTR, these are the handshaking signals with the this interrupt request, ठीक है। तो इन हैंडशेकिंग सिग्नल का यूज़ करके 8155 को इंटरफेस किया गया है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ, ठीक है। सो द फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट ऑकर इन डेटा ट्रांसफ़र. सो व्हेन द पीरियपियल डिवाइस कंटेन्स द डेटा टू बी ट्रांसफर टू द 8085 थ्रू 8155. तो यहाँ पे जो पीरियपियल्स कनेक्ट है दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अगर इनको डेटा सेंड करना है माइक्रो प्रोसेसर 8085 को थ्रू द 8155, सो इट प्लेसेस द डेटा ऑन टू द इनपुट पोर्ट अलॉन्ग विद द STB बार लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो STB बार सिग्नल है जो एक्टिव लो है व्हेन इट इज़ लॉजिक 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है दैट इज़ ट्रांसफर टू द 8155 फ्रॉम दिस इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर डेटा सेंड करना है तो सबसे पहले STB बार सिग्नल यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 0 रिसीव होगा एंड उसके बाद जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा वो रूट होगा 8155 में. So that is the second stage. Then the falling edge of STB bar and BF is high, so that is buffer full. This signal is used for period for the next data transfer, and if buffer full is equal to high, there is no place for next data. ठीक है, तो यहाँ पे बफर फुल अगर 1 है मीन्स हाई है तो यहाँ पे इंडिकेट होगा कि देर इज़ नो प्लेस फॉर द नेक्स्ट डेटा, सो नेक्स्ट डेटा विल नॉट बी अ प्लेस बाय द पीरियपियल. सो ऐसे 1 by 1 जो डेटा है
यहाँ से फेच होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस से, एंड दैट विल बी रूटेड टू द दिस 8085. So on rising edge of SDV bar, the data gets latched into the port, and INTR, there is interrupt request signal is generated to the 8155. That data will be received from the input output device, and if internal I bit is set in the command register, then INTR is connected to the interrupt request of 8085 by using the RST 5.5, which is the one of the interrupt, that is a hardware interrupt of 8085. So the 8085 gets interrupted and branches to the interrupt service routine, and this interrupt service routine program that reads the data from 8155 पोर्ट. ओके, तो इस तरह से जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, ठीक है, वो डेटा को रीड करेगा 8155 पोर्ट पे, क्योंकि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा है वो हमने यहाँ पे रूट किया 8155 पोर्ट में, एंड 8155 पोर्ट से 8085 में जो डेटा है वो रीड होगा या एक्सेप्ट होगा. So that is the hand checking signal for the input mode of 8155. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो हैंड चेकिंग आउटपुट मोड है उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे फॉर 8155 माइक्रो प्रोसेसर. सो थैंक यू.